Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu, for bringing this issue of declaring Prakasam district as a backward district, sir. Sir, in the lines of with the Honorable Prime Minister and with the Honorable Finance Minister in the lines of Bundelkhand, sir. Sir, I have been fighting this for a long time. When I entered into the 12th Lok Sabha about 26 years back, this issue has been raised, sir. Now today, I am very happy. Yesterday in the budget itself, this has been announced, sir. I am very proud to tell to my people of Andhra Pradesh, Prakasam district, that the NDA government has done this, favorable for this Andhra Pradesh state, especially my Prakasam district, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Minister, sir, the funds allocated for this, backward region development is only 50 crores, sir. Whether the Honorable Minister, sir, through you, sir, this is a small amount. After seeing that, this has been declared about 25 years back, sir. With now the population increase and the inflation, whether this 50 crores is going to be increased, sir. Sir, the Aspirational Districts Program is a pan-India program. It is a brainchild of the Honorable Prime Minister, and in 2018, all districts were assessed as to find out who were the lowest ranked in living index. 112 districts were selected, and out of those 112 districts, we have tried to make sure that these districts come up at par with the rest of the better off districts in the country. The theme in all these districts to make them rise above their backwardness is convergence, cooperation and competition. Convergence of all government schemes, whether they are state government schemes or whether they are government of India schemes. And then we have made one step forward and asked for cooperation between the state governments and the central governments. And thereafter, we've had competition amongst all these 112 districts through a delta ranking system, whereby, according to the baseline, the performance of each of these districts, how further it has gone up or down, has been decided. Now, Andhra Pradesh had 3 districts which were in the list of 112 aspirational districts. However, 2 of these aspirational districts, namely Visakhapatnam and Vijayanagar, were bifurcated. And instead of Visakhapatnam, Alluri... आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध करना ठीक नहीं है। और माननीय सदस्यगणों, संसद में प्रदर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी माननीय सदस्य को गेट पे आने पे गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने बुलाकर भी चर्चा की है और ये उचित नहीं है, मुझे कई माननीय सदस्यों ने लिखा है। स्पीकर महोदय, आपने जो अभी रिमार्क किया है, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हमको भी अप्रोच किया है कि ये जो मेन पार्लियामेंट का द्वार है, नहीं मुझे लिख के दिया है, लिख के दिया मुझे, और आपका संज्ञान में भी आया है, मुझे भी बताया गया है। और दूसरी बात सर, आज क्वेश्चन आवर में जो हमारा अपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं होगी, केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा, ये व्यवस्था है। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, thank you very much, Speaker, sir. Sir, in this minister's reply stated, for especially Andhra Pradesh, only 34 crores has been sanctioned. Out of that, only 49 lakhs only has been spent, sir.
What is the reason also? I would like from the Honorable Minister, and not only that, sir, I requested him also whether this 50 crores is going to be increased later. Because 50 crores is a very small amount, you know, for a district, for a development, sir. And moreover, sir, one more thing also. तो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा लोकसभा में भी यहां पर देखने को मिला, जब उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खुद ये कहना पड़ा कि प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही यहां पर चलेगा, यानी कि जो तमाम सांसद हैं, खासतौर पर विपक्ष के, जो जबरदस्त हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए। आपको बता दें कि चूंकि बजट पर जो चर्चा है, 20-20 घंटे का समय दोनों सदन में चर्चा के लिए अब अलॉट किया गया है, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार, जैसे ही कल बजट पेश किया गया उसके बाद से ही बहुत आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है। खास तौर पर बजट में चर्चा के दौरान अब भेदभावपूर्ण जो रवैया है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया गया है। अब आरोप ये है, जो बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा तवज्जो दी गई है। अब ऐसे में विपक्ष की पूरी तैयारी, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। पहली लाइव जो इस वक्त कार्यवाही चल रही है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की, और दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता जब हमें 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, और आप सब चीज़ें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचा